آپ کا ایمان، آپ کا ایمان، آپ کا اعتبار، آپ کا بھروسہ
بھی آپ اگر کھولیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ایمان کی طرف یہ قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہی قرآن کوئی دشمن کھولے تو قرآن مجید کے اوپر جو اس کا کفر ہے، الحاد ہے، نفاق ہے، خیانت ہے، قرآن مجید اشارہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اس پر بہت سے علماء کرام نے قلم اٹھایا ہے۔ ایک ہندوستان کے بہت بڑے مولانا بعد میں لاہور چلے گئے، علامہ ظفر حسن صاحب امروہی، 5 جلد انہوں نے ترجمہ اور تفسیر کیا ہے۔ اس کے مقدمے سے میں مثال پیش کر رہا ہوں، ورنہ بحث تو بہت اچھی خاصی ہے، صرف تمہیداً 2-4 کلمات میں مقدمے سے لے رہا ہوں۔ تو انہوں نے مثال دیا ہے کہ اگر صحیح معنی میں کوئی آج قرآن پر عقیدہ رکھے، قرآن پر ایمان رکھے، قرآن پر بھروسہ رکھے اور اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں جاننا چاہے اور قرآن کھولے تو قرآن فوراً بتا دیتا ہے، قرآن فوراً اشارہ کر دیتا ہے۔ لیکن اسی قرآن سے کوئی منافق اگر کھول کے معلوم کرے، کوئی زندگی کو کافر معلوم کرنا چاہے تو اس کے کفر کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کئی مثال دیا ہے، میں 2 مثال دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بہت سی مثالات پیش کیا ہے، میں یہاں پر کہ قرآن سے کیسے عقیدہ معلوم ہو جاتا ہے، کیسے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری طرف یہ اشارہ کر رہا ہے، یا کوئی دشمن ہے تو اس کے دشمنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ انہوں نے 2 استخارے پیش کیے ہیں، 2 استخارہ۔ سب سے پہلا استخارہ دیکھیے، صرف یہ استخارہ نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے سے حقیر یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ ان بارگاہوں میں کیسے آیا جائے، امام بارگاہ میں آنے کا سلیقہ کیا ہے، تازیہ کے سامنے آنے کا طریقہ کیا ہے، اہل بیت کے دربار میں حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے، ان کے دربار میں کیسے آیا جائے، ان کے سامنے کیسے آیا جائے، یہاں پر اپنے حضور کو کیسے پیدا کیا جائے، کیا طریقہ ہے، کیا سلیقہ ہے، قرآن نے کیا سبق دیا ہے، قرآن نے کیا ادب دیا ہے۔ پہلا استخارہ پیش کرتے ہیں۔ علامہ ظفر حسن صاحب مثال دیتے ہوئے کہا، شاہ عباس جب زیارت کرنے کے لیے چلا ہے نجف اشرف، بڑے چونکہ بادشاہ تھا لہذا حشم کے ساتھ، خدم کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ، اپنے جیسے دبدبے کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس اعتبار سے چلا کہ چلو مولا کی زیارت کرنے جانا ہے، چلو مولا کی زیارت کے لیے نجف جا رہے ہیں۔ بہرحال اس میں جہاں سب موجود تھے، ایک اس کا وزیر بھی ایسا تھا جو ناصبی تھا، دشمن علی تھا، اہل بیت کا دشمن، وہ بھی پیچھے پیچھے، وزیر ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اب یہ پیش کر رہے ہیں کہ ایمان کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔ اگر قرآن سے سوال کرے تو اس کی طرف اشارہ، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کی کتاب ماشاءاللہ جو انہوں نے تفسیر کی ہے اسی میں ایسا ہے، نہیں، بہت سے استخارے جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس استخارے کے لیے بہت زیادہ فون آتا رہتا ہے۔ الحمدللہ دنیا میں روابط بہت زیادہ ہے، ہمارے نوجوان مسلسل تو اکثر جب آیت کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں اور بغیر پوچھے کہتے ہیں یہی تو میرا عقیدہ تھا، یہی تو میں چاہتا تھا، قرآن میں یہ نکلا ہے، قرآن میں ایسے ایسے بہت سے علماء کرام ہیں کہ الحمدللہ جب پیش کرتے ہیں سامنے والا کہتا ہے ہاں یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تو الحمدللہ ایسے واقعات و حالات بہت آتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انشاءاللہ آپ وقت میں آ جائیں گے، یہ کیسا آپ کو دربار ملا ہوا ہے، کہاں پر آپ کو بلایا گیا ہے، کہاں پر آپ کو دعوت دی گئی ہے، کہاں پر آپ کا نصیب رکا ہے، کہاں پر آپ کی قسمت رکی ہے، کہاں پر آپ آگے ٹھہرے ہوئے ہیں، کہاں پر آپ کا آنا ہے، جسے دنیا کٹی ہوئی ہے، یہاں منافق نہیں آ سکتا ہے، کافر نہیں آ سکتا ہے، فاجر نہیں آ سکتا ہے، ظالم نہیں آ سکتا ہے، آنے والا وہی آئے گا جو اہل قرآن ہے، جو اہل نہج البلاغہ ہے، جو اہل حدیث سے ہے، جو اہل روایت سے ہے، جو اہل فہم سے ہے، جو اہل ذکر سے ہے، جو اہل امر سے ہے، جو بہت زیادہ سیرت ہے، بہت زیادہ قیس ہے، بہت زیادہ فریض ہے، بہت زیادہ امر صلوات بھیجا لہذا ساری دنیا کو حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اضافتاً اس کو دیا ہے کہ سب کچھ تو تم کو دنیا میں مل رہا ہے، اس کے علاوہ یہ برکت بھی تمہارے دامن میں ہے، شکر کرو۔ اہل بیت کا دامن ملا ہوا ہے، آل رسول کا دامن ملا ہوا ہے، ان کے زیارت کے لیے شرف ملا ہوا ہے، ان کی برکت کے تبرک کے لیے شرف ملا ہوا ہے، یہاں تبرک حاصل کرتے ہیں، تیمم حاصل کرتے ہیں، حاضری دینے آتے ہیں، مراد لینے آتے ہیں، باب الحوائج کا دربار ہے، باب المراد کا دربار ہے، یہاں پر آؤ اور اپنی مرادوں کو لے جاؤ۔ لیکن آنے کا طریقہ کیا ہے، آنے کا سلیقہ کیا ہے؟ کیا ہم وہیں پر بہت ادب سے جائیں جہاں
जैसे ही कूफे से निकला, नजब की सरहद दिखाई पड़ी। जो गौर से उसने देखा अपने घोड़े के ऊपर से, तो मौला मुत्तकियान का कुब्बा मदार नजर आ रहा, नजफ़ अशरफ नजर आ रहा था, जो कि मौला के चाहने वाला शहदाई है, फिदाई है। लिहाजा घोड़े को रोक दिया और रुकने के बाद अपने वजीर को आगे बुलाया, कहा कि देखो हम मौला अली की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, अब यहाँ पर तुम मशवरा दो कि हम घोड़े से उधर करके जाएं या इसी घोड़े को बैठ करके जाए ज़ियारत करने के लिए। अब देखें, चूंकि वजीर नासिबी कुरान क्या इशारा करते हैं, इंशाअल्लाह आप पढ़ में आकर ले जाएंगे इंशाअल्लाह यहाँ से कि क्या फजीलत है, कैसा इशारा है। इस्तिखारा इस्तिखारा हर वक्त नहीं देखता है, जब बहुत हैरत में पड़ जाए, कुछ समझ में ना आए, तब हमको इस्तिखारा देखना है। अब ये परेशान कि जिससे मशवरा दे रहा है सब उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हैं। अपने वजीर को बुलाया, तो वजीर जो कि नासिबी है, अंदर दिल में उसके दुश्मनी भरी हुई है, उसके दिल के अंदर दुश्मनी। जैसा कि हमारे एक बहुत बड़े आलिम ने बड़ा अजीब जुमला कहा, सलवार देना अल्लामा शरफुद्दीन साहब ने जुमला कहा, बात आ गई तो मैं अर्ज करूं। उन्होंने पूरी बुखारी की बरसी करने के बाद, तहकीक करने के बाद कहा आखिर वजह क्या थी कि बुखारी में तमाम दुश्मनों से रिवायत ली गई, जो करबला में दुश्मन हाजिर थे उनसे भी रिवायत ली गई, बनी उमैया से रिवायत लिया, बनी अब्बास से रिवायत लिया, जो अली के मुकाबले में आते रहे, हसन के मुकाबले में आते रहे, हुसैन के मुकाबले में आते रहे। पंजतन में वो बड़ी प्यारी बात है, देखे बहरहाल यहाँ पर ये मिंबर का अतिया और हदिया है कि क्या चीज़ जहन में आ जाए। बड़ा प्यारा जुमला फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि आखिर वजह क्या है कि दुश्मनों से रिवायत लिया, मौला अली से रिवायत लिया नहीं, अगर कहीं ले भी लिया तो वहाँ हाशिया लगा दिया, कील है, काल है, एतराज है, तस्कीक है, तरदीद है, ऐसा जुमला लगा दिया कि इनकी फजीलत समझ में ना आए। कहते हैं बहरहाल अल्लामा शरफुद्दीन साहब कहते हैं कि आखिर इससे क्यों कोई फजीलत अली की नहीं निकल रही, अगर कोई फजीलत आती गई तो हाशिया लगा दिया और एक जुमला लग दिया ताकि लोग मशकूक हो जाए। कहा चूंकि ये कलम जो चलाता है इंसान, ये कलम उसके अंगुलियों में होता है और अंगुलियों के रग उसके दिल तक पहुंचती है, क्योंकि उसके दिल में पहुंचने अली था, लिहाजा उसके हाथ से फलाना क्या दिल में पहुंच। बहुत बारीक बात, बहुत अंदर की बातें कहते हैं, जो कि दिल में पहुंचने अली भरा हुआ था और दिल की रग यहाँ तक आती है, तो उसके कलम पे कैसे फदाइल हसन आ जाता, कैसे फदाइल हुसैन आ जाता, कैसे फदाइल अली आ जाता, कैसे फदाइल पंजतन आ जाता। बहरहाल जो कि नासिबी था, दुश्मन था, लिहाजा मौला मुत्तकियान के ज़ियारत के सिलसिले में कहता है ऐसा कि आप भी बादशाह हैं और अली भी बादशाह थे। उसने कहा क्या कहना चाहते हो? कहा एक बादशाह के दरबार में जा रहा है तो वही शान होना चाहिए जो बादशाह की दरबार की शान होती है। कहा क्या मतलब? कहा ऐसा है कि आप घोड़े पर सवार होकर के चलिए, जो कि आप भी बादशाह हैं और मादल्ला मौला अली भी बादशाह है। मैंने थोड़ी देर तक बहस हुई, इसको उन्होंने बाकायदा तो थोड़ी तफसील से पेश किया, मैं दरमियान से ले रहा हूँ। बहस होने के बाद शाह अब्बास ने कहा कि ऐसा तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, हम कुरान से इस्तिखारा देखते, कुरान जो इशारा करेगा हम नियत करेंगे कि ज़ियारत करने मौला मैं आपकी आ रहा हूँ, आप तरीका बताइए कुरान से कैसे आऊँ, मैं नियत करता हूँ, इस्तिखारा करता हूँ, जो आयत निकलेगी उस पर अमल किया जाएगा। अल्लाह अकबर नियत करता है कि मौला आपके दरबार में कैसे हाजिरी दी जाए, क्या तरीका है, क्या मातबा है, क्या सलीका है, क्या अदब है, क्या किरदार है, क्या अखलाक है, कैसा इशारा है, कैसा किनाया है, कैसे जो है समझाया गया है, क्या बताया गया है, किस तरह से तवज्जो दी गई है। ये नियत करने के बाद चैत से कुरान निकालता है और निकालने के बाद जैसे ही इरादा किया, इरादा करने के बाद कुरान खोलता है, ऊपर आयत निकलती है, अल्लाह अकबर आप मर्द में आ जाएंगे, आयत निकलती है कि ज़ियारत की नियत कर रहा कैसे दरबार में आओ, आयत निकली कुरान की फखला नगले इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस हुआ। जनाब मूसा को जो आयत आई थी, ऐ मूसा तुम पाक वादी में चल रहे हो, खबरदार अपनी जूती को उतार करके आना, वही आयत निकली, खबरदार अपनी नाले को उतार दे, इसलिए पाक वादी में आ चुका है। बोलो के यहाँ सुन रहे हैं
मुक़द्दस वादी में चलना, वही आयत जो जनाब मूसा के लिए आई थी, वही इशारा जो जनाब मूसा के लिए था। फौरन घोड़े से कूद पड़ता है, वज़ीर को सामने बुलाया, बुलाने के बाद तलवार निकाला, उसको देख करके कहता है कि यकीनन मौला आपका दरबार ऐसा है कि जो सर झुका के आता है वो बच जाता है, जो अकड़ के आता है उसकी गर्दन को मार दी जाती है। अल्लाह अकबर, चूंकि ईमान वाला था, मौला का चाहने वाला था, लिहाजा इशारा ऐसे ही निकला जैसा उसका अकीदा था। अपने अकीदे को कुरान से उसने देख लिया, अपने ईमान को उसने कुरान से देख लिया, अपने एतबार को उसने, लेकिन एक जालिम ने भी देखा। मिसाल उन्होंने कौन दिया है कि एक जालिम ने भी इस्तिखारा देखा, जिसका नाम वलीद फलीद है। एक सलवात भेजे आप सभी से दुश्मनी की है, 75 से बाकायदा तौर पर इसका तारीफ में नाम आता है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर दिखाने के लिए कुरान को मानता था। दरबार सजा हुआ, उसमें बैठ करके बात समझ में नहीं आ रही थी, लिहाजा उसने कहा कुरान से इस्तिखारा कर लेते। इस्तिखारा कोई नई बात नहीं है, बहुत कुरान पहले बुरा चलता था। और कुरान तो लेकुल्ले अपने मुश्किल, कुरान जो है हर अपने मुश्किल के लिए, आपको मालूम है कहाँ कहाँ कुरान निकाला गया, अंबिया ने कैसे निकाला। उसके बाद इस्तिखारा आया, इस्लाम के दौर में इस्तिखारे के रवाज में कुरान मजीद से इस्तिखारा देखा जाता है। अल्लामा मजलिसी ने मुस्तकिल तौर पर एक जिल्द सिर्फ लफ्ज़ इस्तिखारा पर लिखा है। सलवात भेजे आप अल्लाहू अकबर। लिहाजा वलीद ने भी इरादा किया, सामने सब बैठे हुए उनको दिखाने के लिए मैं भी कुरान को मानता हूँ, मैं भी कुरान पर अकीदा रखता हूँ। जैसे ही उसने नियत किया और कुरान मजीद को खोला, कुरान की आयत निकली, वह खाबा कुल्लु जब्बारिन अमीन, जितने भी जालिम और फाजिर हैं सब नाउम्मीद हुए, सब हलाक हुए। जो भी जालिम है, फाजिर है, अहले बैत का दुश्मन है, बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कुरान हमारी तरफ क्या इशारा कर रहा है, लिहाजा कुरान मजीद को फाड़ के फेंक देता है और शेर कहता है कुरान धूमियों जलाता है, जाके वहां पर रसूल ने कह देना मैं डरने उड़ने वाला नहीं हूँ। अल्लाह में इतना बड़ा जालिम था, अशार कहा ये ऐसा जुमला उसने कहा कुरान को फाड़ के फेंका कि वहां जो बैठे हुए उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, टूट पड़े सारे लोग और उसको कत्ल कर दिया फौरन। यानी उनका इशारा ये था कि तो इस्तिखारा एक अली का चाहने वाला देखता है तो उसका भी अकीदा कुरान में निकलता है, और एक अली का दुश्मन देखता है तो उसका भी मुंह रुदाई हो जाता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुलाकात है, हमारे पास एतबार है कि अभी भी 1400 साल के बाद भी हम शेख कर ले अपने अकीदे। और ऐसा नहीं है सिर्फ कुरान मजीद नहीं, ये फर्श अदा भी फर्श अदा नहीं है, ये मजलिस नहीं है, बल्कि आज 1400 साल के बाद भी हमारे लिए मिलाद बना हुआ है, एतबार बना हुआ है, मेआर बना हुआ है, मीज़ान बना हुआ है। ऐसा मीज़ान है, ऐसा भरोसा है, ऐसी चीज है कि फर्श अदा पर आज मिंबर से चैलेंज है, आप गौर कर लीजिएगा, मालूम करें न जाने कितने मज़ाहिब हैं, न जाने कितने मसालिक हैं, बहुत से मज़हब वाले हैं, बहुत से मसलक वाले हैं, और आप देखें ऐसे ऐसे मज़ाहिब हैं, ऐसे ऐसे दुनिया में पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, बड़ा काबिल माना जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है, लेकिन कैसे कैसे फैसले कर रहे हैं कि फैसला हिंदुस्तान में मसलन अगर कोई इल्म पर होना है, अक्ल पर होना है, मजलिस पर होना है, मातम पर होना है, जुलूस पर होना है, तो एक बहाने से टालते चले, घबराहट है, ये परेशानी है, एक बहाने से टालते चले जाने। दुनिया पढ़ा लिखा कह रही है, इशारे काफी है, लेकिन अगर उन्हीं के सामने ये मसला रख दिया जाए कि हम जिनसी जाए नहीं, एक हफ्ते में फैसला आ जाएगा कि हाँ जाए, मसला इशारा काफी है जो आजकल चल रहा है। एक और सलवात दे जा क्या साहब, हम बराबर कर रहे हैं अमेरिका वाले, हम बराबरी कर रहे हैं जर्मन वालों को, वहाँ ऐसा चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा चल रहा है, लिहाजा उसका फैसला फौरन आ जाएगा। ये काबिलियत है, ये सलाहियत है। और अगर यहाँ के जो है पता चला मस्जिद का फैसला हो, इमाम बारगाह का फैसला हो, अलम का फैसला हो, ताज़िया क्या सुन रहे हैं आप, एक सलवात भेजे आप, न जाने यहाँ पर कहाँ काबिलियत चली जाती है, कैसा भूख है, कैसा हसद है, कितनी ज़्यादा जलन है। आप देखें कैसे डाला जा रहा है, आप लोग पेपर अखबार उठा करके देखें, डाला जा रहा है किसी तरह से
देखिए इससे पहले भी अर्ज किया, कुरान को सिर्फ रटा दिया जाता है, कुरान का तर्जुमा नहीं बताया जाता है। चूंकि हमने एक सवाल भी किया था, एक जगह पर हम मजलिस पढ़ने के लिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह 7 मजलिसें पढ़नी थी देवबंद के करीब सहारनपुर। उसकी बरकत बाद में जाहिर हुई जब 7 मजलिस पढ़ करके हम माले गाँव आए तो एक साहब का फोन आया, कहा मौलाना साहब 7 मजलिस आपने पढ़ी, 7 लोग शिया हो चुके हैं। बाद में दोबारा जब बुलाया गया तो हमारी मुलाकात हुई और उनको भी जमा किया गया, हालांकि हमने उनको ऑफर भी दिया, चूँकि एक साहब ने बहरहाल जब अपना अकीदा बदला मुस्तफसिर हुए मौला की तरफ आए, बहुत बड़े कारी थे, बहुत ज़बरदस्त खिलाते। हमने कहा अगर आपको खतरा है तो आप चलाइए शिकवाबाद हमारे मदरसे में पढ़ाइए, 1-2 साल के बाद जब भूल जाएंगे तब आप फिर वापस चले जाइएगा। पर ये सारी बहस हुई, उनसे हमने कहा कि आप माशाल्लाह इतने बड़े कारी हैं, आपको माना जाना जाता था, शहर में पहचाने जाते थे, अभी तक क्यों समझ में नहीं आया ये मज़हब? आप 45-46 साल के हो रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अंदर की बात बताई, देखा सब हट गए। कहा कि मौलाना साहब ऐसा है कि जब बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती थी, जहाँ मौला के फदाइल की बात आती थी, वहाँ 2 रकअत को मिला के मुल्ला जी कहते थे यहाँ कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ बाद में पढ़ना है, बाद में पढ़ना। सलवात भेजा बुखारी और मुस्लिम से हवाला दिया तो जाके उन्होंने देखा तो मौजूद था, वो ताज्जुब करने लगे, अभी तक 3 दफा दौरा किया ये बात नहीं मिली, आपने बताया तो जाके देखा आपने तो मौजूद थे। हमने कहा क्यों नहीं मिली? तब बताने लगे कि इतना ज्यादा टाला जाता है, 2-2 बरस मिला के पलटा देते, नहीं साहब यहाँ कोई पढ़ना नहीं है, हदीसे के साथ की बात आई जल्दी से पलटा दिया, आयत तहीर की बात आई जल्दी से पलटा दिया, पंजतन की बात आई जल्दी से छोड़ दिया कि तालिब इल्म समझ न पाए। लिहाजा उनसे इंटरव्यू हो रहा था, उनमें आए थे बेचारे, ताज़े मुस्तफसिर थे और बहुत बड़े अल्लामा माने जाते थे। उनसे पूछा गया कि बुखारी शरीफ आप कई मरतबा तमाम करके आए वहाँ लाहौर से? कहा कि ऐसा है कि मजलिस में गए, वहाँ पर आँख खुली तो फिर से जब हमने पढ़ा अपने आप से तो थोड़ा थोड़ा पहले पूछ करके तर्जुमा किया और इसी तरह से वादे हुआ कि ये मदार पर हक है जिस पर आप लोग बैठे हुए फर्श अदा पर। उनसे पूछा गया अभी तक क्यों समझ में नहीं आ रहा था? कहा कि बुखारी इस तरह से हमको रटाई जा रही थी कि हमने आखिर में सवाल कर लिया कि यहाँ लिखा जा रहा है काला और लिखा रहता है लाल, कि जब काला है तो काला होना चाहिए, ये लाल क्या सुन रहा है, काला होगा क्या सुन? सलवात भेजा जो जगह कहा है कि लिखा रहता था लाल पेन से और कहते थे काला, तो हम लोग कहते थे तो काला है तो बताओ काला ये कैसे सुर्ख लिखे? सलवात भेजा जब यहाँ बैठते हैं तो यहाँ पर कशकुल किना हो जाता है, पर्दों को उठा दिया जाता है, सारी बातों को खोल के बयान किया जाता है। तिरमिज़ी में क्या लिखा हुआ है, मुस्लिम में क्या लिखा हुआ है, सियासत में क्या लिखा हुआ है, हमारे अदियान ने क्या कहा है, हमारे दुश्मन ने क्या कहा है, अल्लाह का कौल ये है, रसूल का कौल ये है, मौला का कौल ये है, अहले बैत का कौल ये है, एतराज करने वालों ने ऐसे कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि फर्श अदा पर आंखें खुल जाती है, यहाँ पर आने के बाद इंसान अपने आप को चेक कर सकता है, मिनाक है, ये एतबार है, ये भरोसा है, ये मीज़ान आप कहेंगे किस तरह से। आज जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे यहूदियत हो, चाहे ईसाईयत हो या इसके अलावा और बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, वो कब राहे रास्त पर हैं और कब हट जाते हैं उन्हें खबर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। एक यहूदी कब तक यहूदियत पर है उसे खबर नहीं है, कब हट गया उसे खबर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौला हुसैन ने क़यामत तक ऐसा इंतजाम कर दिया है कि अगर हम 2-4 लोग बाहर खटके हुए थे, फर्श अदा को बैठाए गए, कुरान बताया गया, हदीस बताई गई, रिवायत बताया गया, अकीदा बताया गया, फिर से हम सुधर गए, फिर से अंदर बहुत दकीक बात है। आप गौर कीजिए कि हमको बार-बार कल आपने किया तो बार-बार मजलिस क्यों की जा रही है, बार-बार क्यों बुलाया जा रहा है कि हम मुहर्रम के मोहताज नहीं है, हम सफर के मोहताज नहीं है। मुहर्रम में तो मजलिस करते हैं, सफर में तो मजलिस करते हैं, 8 रोज और मजलिस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इधर 9 रबीउल अव्वल पार हुई, 10 को पता चला कि 10 तारीख को मजलिस है। क्या साहब 2 महीना आखिर में नहीं कर पाए थे, अब्बा की बरसी है, दादा की बरसी है, आज हमने ये कि मसला सुन रहे हैं कि बार-बार मजलिस रखी जाती है, रात गुजर रही है, मजलिस हो रही है, दिन गुजर रही है, मजलिस हो रही है, साल गुजर रहे हैं और ये बार-बार हम मजलिस नहीं कर रहे
जैसे जब बहुत बड़े मजमे में होती थी तो यहाँ नजर नहीं आते, बाहर खड़े रहते थे, बाप भी बाहर है, बेटा भी बाहर है, या जो भी मजलिस कराता है हाथ जोड़े खड़ा रहता है। अगर यहाँ पर ये जहन में आ जाए, बाद में अशरे और खमसे के बाद मौलाना पूछ लेते भाई कुछ सुना, कुछ समझा कहा नहीं, साहब इंतजाम में थे, क्योंकि हमको तबर्रुक बांटना था, मजमा संभालना था, लिहाजा हम कुछ सुन तो नहीं पाए लेकिन लोगों को सुनाया। अब यहाँ पर मिंबर में बैठा कर दूं, ऐसे लोगों के लिए भी कोई जगह है, कोई मिसाल है जो इंतजाम में लगे रहते, महफिल करवाते हैं खुद नहीं सुन पाते, मजलिस कराते हैं खुद नहीं सुन पाते, उनके लिए क्या सवाब है। करबला में इसकी भी मिसाल है, शहीदों ने हजरत नमाज पढ़ी नहीं पढ़ाई, वही दर्जा है जो हुसैन का दर्जा है, जो अली अकबर का और सुन नहीं पा रहे हैं, इतनी बड़ी हम महफिल कर रहे हैं, इसकी भी मिसाल मौला हुसैन ने कायम की। सही यहाँ खड़े हो जाओ, ज़ोहर यहाँ खड़े हो जाओ, तो रुकू करने वालों इस वक्त नहीं, लेकिन वही रुकू का सवाब है जो हमारे लिए, वही सजदे का सवाब मुंतज़िम को बड़ा सवाब मिलता है, इंतज़ाम करने वाले को बड़ा सवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। ये बार बार क्यों मजलिस करा रहे हैं, कभी आपने गौर किया ये बानियाने मोहतरम क्यों बुलाते, आ जाओ मजलिस है, आ जाओ मजलिस है, फिर मैं कुरान में पेश करा, वाक़या सुना हुआ है, लेकिन नतीजा निकालना है कि बार बार क्यों दावत दी जा रही है, बार बार क्यों यहाँ पर बुलाया जा रहा है, क्यों बार लाके बिठाया जा रहा है। आ जाओ मजलिस हुसैन है, आ जाओ करबला वालों को देख याद रखें, कुरान मजीद में इसकी भी मिसाल है, जनाब इब्राहिम के लिए है कि बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे, जब तक कोई मेहमान न मिल जाए वो खाना नहीं खाते। कुरान मजीद में पूरा वाक़या है। एक दफा भूख लगी हुई है और कोई मिल नहीं रहा है, सब बहुत दूर चले गए शहर से, चौराहे पर जाके खड़े हो, क्या देखा कि 70 अफराद आ रहे हैं और ऐसे हैं जो कि बेचारे सब मजदूर हैं, काम करने के लिए निकले हुए, आज रुपए हयात चाहिए, खुदे लायक चाहिए उनको, लिहाजा उनके करीब गए, कहा देखो मुझे भी भूख लगी हुई है और मैं बगैर दावत दिए, बगैर मेहमान के मैं खाना नहीं खाता और कई टाइम हो चुका है, बड़ी सख्त भूख लगी हुई है, लिहाजा हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा देखिए हम दिन भर मेहनत करते तो उनको कुछ मिलता, आप ले चलेंगे, दावत के लिए इंतजाम करेंगे, और मतलब जो कुरान ने जो इशारा किया कि बछड़ा वगैरह ला करके ज़िबा करेंगे, कि हिजली हनीफ जो कुरान ने इशारा किया है कि बहुत ताज़ा बछड़ा ला करके उन्होंने ज़िबा किया 70 लोगों के लिए, तो उसके लिए देर लगेगी, खाना खाएंगे तो हमारा दिन भर का आदूमा कौन देगा। इब्राहिम मुस्कुराए, ताकि वो भी दिया जाएगा, वो भी तुम्हारा दिया जाएगा, हमारे साथ चलो। बहरहाल जब 70 के 70 वहां पर पहुंच गए और दावत हो गई, एक मरतबा उन्होंने कहा कि आपने आदूमा हयात भी दे दिया, बच्चों के लिए भी कुछ दे दिया, खाना भी खिलाया, आपकी मुराद क्या है, इतनी देर से आप लगे हुए हैं, कुछ तो आपके दिल में है, तुम जनाब इब्राहिम ने कहा कुछ और बात नहीं, सिर्फ एक सजदा करके चले जाओ। अल्लाह बड़े गौर से आप सुन रहे हैं, एक सजदा करके चले जाओ। जैसे ही सजदा का नाम सुना, एक दूसरे को देखने लगे कि हमको तो मालूम ही नहीं है। पता चला आज भी अगर किसी को सजदा नहीं मालूम तो कितने हुसैनी हो वो मुस्लिम है अंदर अंदर कि सजदा ही नहीं मालूम है, नमाज ही नहीं मालूम है। बात मैंने कहा कुरान कह रहा है अकीमुस सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, नमाज छोड़ के मुशरिक न बन जाओ। जब सजदा ही नहीं मालूम है तो क्या है फिर। और बल्कि ये भी जुमला याद रखे, जब बात आगे मंतकी जुमला है, दुनिया में जितने नमाज पढ़ने वाले हैं हर नमाजी के लिए जरूरी नहीं हुसैनी हो, लेकिन हर हुसैनी के लिए जरूरी है अल्लाह क्या जितने नमाजी सऊदिया हो गया सलवार भेजा हर नमाजी के लिए जरूरी हुसैनी हो, लेकिन हर हुसैनी के लिए जरूरी है कि नमाजी अगर मौला हुसैन की तरफ आ रहा है और माशाल्लाह मातम मजलिस कर रहा है, लेकिन नमाज से दूर समझ जाए अखलाक़ ज़बानी है, मौला हुसैन की मोहब्बत नहीं आई, अभी ये ज़बानी दावा है, दुआ करे। लिहाजा जनाब इब्राहिम ने जैसे ही कहा इनके समझ में नहीं आया, उठ के जाने लगे, लेकिन उसमें एक बुजुर्ग था, उसने कहा ऐसा है कि इतने कई घंटे से मेहनत किया है, एक सजदे के लिए कह रहा कि पेशानी रख देना, खाक पर चलो रख देते, बुजुर्ग था। यही वजह है कि हदीस में आया हुआ है अशेख ही बैठे का नबी की उम्मत, बुजुर्ग अपने घर में ऐसे ही होता है जैसे एक नबी अपनी उम्मत में होता है, अपने बच्चों को समझाता रहता है यहाँ न जाना वहाँ न जाना, ऐसे रहना, वैसे क्या सुन रहे हैं बुजुर्गों के लिए अशेख ही बैठे का नबी की उम्मत, बुजुर्ग अपने घर में ऐसे
पाबंदी है, लेकिन बॉम्बे में भीड़ इतनी है कि आप मसलन डोगरी चले जाए, आप जकरिया स्टेज चले जाए, आप जैनबिया हाट की तरफ चले जाए, या पहले जो चोर बाजार कहा जाता था उधर चले जाए तो पता चला कि ऐसा लगता था जैसे एक कोई जलसा है, जुलूस है जो भागे चले जा रहे हैं। तो स्टेशन पर आप दादर में अगर उतरना चाहे तो पब्लिक उतार देती थी, खुद से नहीं उतरा के गेट पर आ गए तो ठकेर में उठी सलवार भेजा और इसी तरह से लोकल पर चल रहा है तो सामने आ जाए ठकेर में चढ़ा के देखिए नहीं आदत इतना ज्यादा धक्का लग रहा है। लेकिन इतना ज्यादा धक्का लगने के बावजूद भी आपके जहन में क्या है, इसलिए कि यहाँ के अदब में है, यहाँ के अखलाक में है, कितनी तेज भागते चले जाएं, अगर आपकी केवनी लग गई है, आपका बदन टच हो गया तो आप भागेंगे नहीं, फौरन खड़े हो जाएंगे, 2 दफा उसको चूमेंगे, आप 2 दफा चूमेंगे, 2 दफा वो भी हालत चाहे बॉम्बे का दादा क्यों ना हो, बॉम्बे का माना हुआ क्यों ना हो, लेकिन आपने फौरन जैसे ही चूमा फौरन वो भी चूमे, भाई साहब कोई बात नहीं है। यानी इशारा क्या है कि जब मखलूक इतना माफ करने का तैयार है, शैतान ये बहकाता है कि इतनी नमाज पढ़ते हैं, इतना सजदा करते हैं, आया ये मेरा सजदा कबूल भी हो रहा है कि नहीं, नमाज कबूल भी हो रही है कि नहीं? अल्लाह अकबर। ये कभी कभी शैतान बहकाता है नौजवानों कि इतना ज्यादा इबादत करते हैं। ये भी कुरान कि कुरान से पूछे कि हमारी इबादत कबूल है, कुरान में लिखा हुआ है, सिर्फ तर्जुमे की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है, फिक्र कर मसला जो मौजूद चला रहा है, हर बात कुरान मजीद में मौजूद है। कभी कभी ये होता है शैतान का हमला होता है, शैतान हमला करता है कि आया इतने दिन से इबादत कर रहा हूँ, कबूल भी हो रही है कि नहीं। अब कुरान से पूछते हैं, कुरान ने क्या विधान दिया? कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, यकीनन नमाज बुरी और फहशा चीजों से रोकती है। तो कुरान ने विधान क्या दे दिया? यानी नमाजी हो गए हो तो हसद से दूर हो जाओ, ईगो से दूर हो जाओ, बुराई से दूर हो जाओ, तोहमत से दूर हो जाओ, कुफरी से दूर हो जाओ, कुफरी न करो, बुराई न करो, तोहमत न लगाओ, गीबत न करो, टोक में न रहो, जासूसी में न रहो, आप लोगों के दिल काटो में न रहो, होशियार में न रहो, मुनकरात में न रहो, बुरी बात। यही तो है ना, नमाज ये सिखाती है कि तमाम बुराइयों को छोड़ दो, तुम इबादत कर रहे हो, लेकिन पता लगाना है कि मेरी नमाज कबूल हो रही कि नहीं। नमाज़ें दोहरा नजर किया, बाहर जाकर के दुकान पर खड़े हुए, खड़े होने के बाद 2-4 साथी आए और किसी की गीबत करना चाहा, फौरन हाथ लगा दिया, नमाज पढ़ के आया हूं, मैं गीबत नहीं करूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा। याद रखिए, चाहे और कोई नमाज कबूल न हुई हो, लेकिन ये नमाज कबूल है कि नमाज बुरी चीजों को रोकती है। आप गीबत से बच रहे हैं, आप बुराई से बच रहे हैं, आप तो बच सिमट रहा है, देख रहा हूं टाइम नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, जो चीज में छेड़ रहा हूं कुरान की आयत और रिवायत से, उसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ाना है। आज बहस यही पर है कि कुरान के दकायक पर, कुरान के हकायक पर हमको गौर करना है कि अल्लाहु अकबर, ये जो मैंने कल आपसे किया था, बार-बार मजलिस क्यों रखी गई, क्यों बार-बार समझाया जा रहा है, क्यों बार-बार बताया जाए? इसलिए कि इंसान मुरक्कब में खता होने से, इंसान मुरक्कब में खता गलती से भूल चूक हो जाती है। थोड़ा सा भटका हुआ था, मजलिस में आगे बैठा, फिर समझ गया, फिर थोड़े दिन ये मजलिस में नहीं था, फिर बुला लिया गया, फिर समझ गया। इसकी निशान क्या है? ताकि हमारे नौजवान समझ जाए। माशाल्लाह आप भी पाबंदी से तकरीबन 21-22 किलोमीटर का सफर करते हैं अपनी गाड़ी से, और बहुत से ऐसे लोग होंगे कि सफर करते, मसलन सुबह का वक्त है, सन्नाटा है, जो भी सुबह सब बॉम्बे वाले सोते हैं, कोई काम पड़ गया, आपने मसलन 7 बजे उठाया गाड़ी और निकल गए गुलाबा की तरफ, पता चला कि आपको 30-35 किलोमीटर का सफर करना है,
की तरफ इशारा कर दिया जाए कि जो ये इबादत हम कर रहे हैं कितनी ज्यादा अल्लाह से कुर्बत हो जाए। मसला समझदार मजमा हमारे सामने है, और बाकी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इंशाल्लाह वो भी होंगे, अल्लाह ताला उनकी समझ में इजाफा फरमाए। लेकिन जो चेहरे मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुनव्वर चेहरे, अल्लाह ताला और रोशनाई में इजाफा फरमाए। सलवात कितनी ज्यादा कुर्बत हो जाती है। इसलिए नमाज अल्लाह ताला से करीब करने के लिए कुर्बतन अल्लाह आप नियति करते हैं, कुर्बतन अल्लाह बात बनिए कुर्बतन। लेकिन इसमें जब सजदे में जाते हैं तो रुकू में वो कुर्बत नहीं है, क़याम में कुर्बत नहीं है। सजदे में जब जाते हैं तो आप अल्लाह से बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। आप हम हदीस से पूछेंगे रिवायत में कितने ज्यादा करीब, क्या रिवायत समझा पाएगी, क्या हदीस समझा पाएगी, क्या कुरान की आयत समझा पाएगी? कहा नहीं, आपने दिया है, आपने से समझ लो कितने ज्यादा करीब है। अच्छा हम पूछेंगे बच्चों से, माशाअल्लाह बुजुर्गों से तो मादरत के साथ कि बेटा बताओ कि जब सजदे में जाते हैं तो कितने आधा का टिकाना बाजी में सजदे में? फौरन पढ़ा लिखा बच्चा कहेगा आधा है, सवा 7 आधा का टिकाना जरूरी है। माशाअल्लाह इशारा काफी, इंशाअल्लाह ये बात लेकर के जाएंगे आप, कहेंगे इतनी खुश्क बात है लेकिन इस पर भी नारा लगवा दिया। हालांकि इसमें नारा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आए तो रिवायत में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर 7 आधा का टिकाना, जैसे ही आप सजदे में गए पेशानी टिकाना बाजी, दोनों हथेली टिकाना बाजी, दोनों घुटने का टिकाना बाजी, दोनों अंगूठे का टिकाना बाजी। अगर इसमें एक भी इधर उधर हुआ तो सजदा बातिल हो जाएगा। तो सजदे में जाने के बाद अल्लाह ताला से करीब हो जाते हैं। परवरदिगार कितनी कुर्बत है, कहा अपने बदन में गौर कर लो, पूरे बदन में बाल है, सर में भी बाल है, सीने पर भी बाल है, पैर पर भी बाल है, लेकिन पेशानी पर बाल नहीं है, हथेली पर बाल नहीं है, घुटने पर बाल नहीं है, अंगूठे पर बाल नहीं है। परवरदिगार को कहा चूंकि मेरा बंदा इतना करीब हो जाता है कि अगर बाल हुआ देगा तो बाल बराबर फर्क हो जाता है, मैंने बाल नहीं हटा। लिहाजा बाल भी हटा लिया कि अल्लाह की कुर्बत है, अल्लाह से मुत्तसिल हो गया बंदा। पेशानी पर बाल नहीं, हथेली पर बाल नहीं, घुटने पर बाल नहीं, दोनों अंगूठे पर बाल नहीं। और माशाअल्लाह बहरहाल अभी इस वक्त थोड़ा परेशानी होना, हमारे बहुत से ऐसे जो सामने बैठे हुए अपने गाँव देहात जाते थे मजलिस करने के लिए, सभी को याद आ रहा होगा। कोई पता चला कि अकबरपुर जा रहा है, कोई बरारी जा रहा है, कोई माशाअल्लाह यूपी वाले सब बैठे हुए हैं, लिहाजा सब जाते थे। तो जाने के बाद गांव में क्या होता है, ये जो आप नमाज में जैसे ही नमाज तमाम होती मुसाफिया क्या करते हैं, आपने गौर किया, इंशाल्लाह ये भी ले जाएंगे जहन में कि फौरन मुसाफिया होता है। ये और बात है कि आप एहतियात किया जाएगा, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को बिलखुसूस एहतियात, हालांकि खुशी की अलामत नहीं है। मुसाफिया करते तो कहते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाया, तकब्बल अल्लाह, आपकी इबादत कबूल, कोई खुशी की अलामत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात की अच्छी बात है, एहतियात होना चाहिए। मुसाफिया करते साहब नमाज, अब नमाज है क्या जो हम मुसाफिया करते, याद रखिएगा मस्जिद के गेट को भी नहीं कर रहे, सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। यानी इंसान जब नमाज पढ़ता है तो फर्श अदा पर या मुसल्ले पर नहीं रहता है, बल्कि वो सफर में चला जाता है, वो मेराज में चला जाता है। आप कहेंगे कैसे, इसकी अलामत क्या है? मसलन यहाँ सब सामने हो, आपस में एक दूसरे को सलाम तो कर जाएंगे, लेकिन पढ़ के हाथ नहीं, ऐसे भी ममनू है आजकल। लेकिन 5 महीने पहले आप गौर करें कि मतलब कोई बाहर से आ गया, जैसे मैं आ गया हूँ या और कोई आपका चाहने वाला आ जाए, तो जो आपके मीरा रोड वाले हैं उनको तो आप सलाम करके रह जाएंगे, लेकिन अगर कोई गुलाबा या बम्बई से आ जाए तो सलाम करके हाथ मिलाएंगे, कोई यूपी से आ जाए तो सलाम करके हाथ मिलाएंगे। अगर कोई पूछे साहब इनको तो अपने घर वालों को आपने सलाम कर दिया, लेकिन इनको क्यों हाथ मिलाने का? मुझे खबर नहीं, मुसाफिरत करके आए हैं, ये सफर करके आए हैं, अगर सलाम के अलावा हाथ। इसी तरह से हम जब नमाज पढ़ते हैं तो मेराज पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नमाज तमाम हो गई तो हाथ मिला के बताते हैं आज भी तुम भी हाथ मिला दो, तुम भी हाथ मिला दो, तुम भी मुसाफिर कर लो, सफर तमाम हो चुका है, सफर तमाम हो चुका है। मुसाफिर तो बताते हैं कि हम मेराज पर थे, अब नमाज तमाम हो गई है, हाथ मिला दो कि तुम्हारा भी सफर तमाम, हमारा भी सफर। क्या सुन रहे हैं इंसान कुरान के जरिए से, हदीस के जरिए से, रिवायत के जरिए से हल कर सकता है, सिर्फ गौर करें। लिहाजा ये मजलिस हुसैन के जरिए से जो बातें हमको मिल रही, लाखों सलाम करना चाहिए। जो हम बार सलाम करते हैं मौला हुसैन को, हर बात पर सलाम करते खत्म, बल्कि कुछ जगहों पर तो हमने ये भी देखा है, हो सकता है बांग्लादेश में रिवाज हो, हमने गौर नहीं किया, हैदराबाद दक्कन वगैरह में तो नमाज पढ़ करके हटेंगे
तक कि थोड़ा सा मातम न कर ले मुसल्ले, थोड़ा सा जब तक मातम न कर ले और थोड़ा सा क्रिया न कर ले, उस वक्त तक हटते नहीं। मौला हुसैन का सदका है और उसको बाकायदा एक आयतुल्लाह साहब ने भी पेश किया था। उनकी कब्र मुबारक खूब में बीबी के रोज़े से एकदम करीब, मासूम के रोज़े से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा हुज्जतिया की तरफ, तो आयतुल्लाह मरशी नजफी साहब की कब्र मुताहर है और वहीं पर उनका बहुत ज़बरदस्त किताब खाना भी, उनका जुमला मशहूर है, उनके सवाल हयात में भी लिखा हुआ है कि कैसा ये सदका मिला हुआ है, किस तरह। जो वहाँ 10 मुहर्रम के लिए रिवाज है कि 9 मुहर्रम से तकरीबन दिन ही से जुलूस आना शुरू हो जाता है। बड़ी दूर दूर से लोग पूरी दुनिया से बीबी को फुर्सत देने के लिए जाते हैं, लिहाजा जुलूस का शेड्यूल ये बनाए हुए हैं कि चाहे वो हरम के गेट तक कई घंटे में पहुंचे मातम करते हुए, लेकिन जब हरम में पहुंचेगा तो 1 मिनट के लिए सलामी दे और बहुत तेज मातम करे, आगे बढ़ जाए। फौज लगी रहती बाकायदा, बड़ी ताकत से हटाती, फिर दोस्ती अंजुमन आ जाती, क्योंकि हजारों अंजुमन आती पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से लोग फुर्सत देने के लिए आते हैं। तरीका ये है कि जब अजान का वक्त हो जाता है तो माइक से बाकायदा ऐलान कर दिया जाता है कि 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए अब अंजुमन खामोश हो जाए, इसलिए कि अजान हो रही है, अकामत हो रही है, अब नमाज होने वाली है। बहरहाल एक अंजुमन फौज के रोकने के बावजूद भी अंदर आ गई और उसको 1 मिनट चाहिए था कि वो फुर्सत लेके आगे बढ़ जाए। आयतुल्लाह मरशी नजफी साहब मुसल्ले पर आ चुके थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका जो पीछे मुकब्बिर है नाराज होकर के कह रहा, खबरदार साकिन बाशिन, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अभी ये जुमला कहना चाह रहा था कि अकामत नहीं शुरू हुई थी, आयतुल्लाह मरशी साहब खड़े हो गए मेरे मुसल्ले पर और मुकब्बिर से कहा कि साकिन बात तुम खामोश हो जाओ, ये जो जुलूस आया इसी से नमाज़ कायम है, जुलूस को आगे करने को नमाज बाद में हो जाएगी, जवाब बाद में हो जाएगी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, सलावत भेजना अल्लाह। इसलिए कि कुछ ऐसे मौके आते हैं तो उस वक्त कुछ नमाजियों को बहुत ज़्यादा नमाज याद आती है। एक और सलावत भेज दिया अल्लाह, ऐसे जोश आता है। जैसे ही देखा अदब जा रहे भाई, थोड़ा सा जुलूस आगे बढ़ लो, तो यहीं पर क्यों जोश आ गया आपको? ठीक है, आप नमाजी हैं, आयतुल्लाहों ने क्या बताया, इमामों ने क्या बताया। यकीनन अगर पहले जुलूस बाहर रहता तो खुद ही कहते वहीं पर ठहरा, लेकिन आ चुका है, हरम में आ चुका है और बड़े जलाल में ही जुमला करना है, साकिन बात, खामोश हो जाओ। यही मातम हुसैन से ये इबादतें बाकी है, यही जुलूसों से ये हुसैनी नमाज बाकी है, ये सारी जमातें बाकी पर अदीदान यकीन। आज 7 मुहर्रम भी है, ऐसे भी पुरसा जारी है और बानी मोहतरम का इशारा है कि जनाब अली अकबर का जिक्र किया जाए। आप यकीनन गौर फरमाएंगे, बड़े फज़ाइल एनटीवी कुरान के ज़रिए से मैं पेश करता फुर्सत में मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन वक्त हो चुका है, घंटा के करीब हो रहा है, इसके बाद भी मजलिस है। अदीदान ईमान कितनी बरकती ज़िंदगी आप गौर फरमाएंगे। सिर्फ मैं कुरान के एक आयत से इशारा करूँगा कि अली अकबर अलैहिस्सलाम की 18 साल की ज़िंदगी कितनी बरकती है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जनाब जिब्राइल कितनी देर के लिए शबीह रसूल बने थे। जब जनाब मरियम के सामने हाजिर हुए थे तो आप कुरान से पूछें तो कुरान कहेगा कुछ सेकंड के लिए वो शबीह रसूल बने थे। कहा था कि मैं, जब उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगती हूँ, अगर तुम मुत्तकी है तो क्या फरमाया, आना रसूल रब्बी, मैं तुम्हारे रसूल जो है अल्लाह की तरफ से रसूल बन के आया हूँ, मुझे शबीह रसूल बनाया गया है। 3 सेकंड के लिए शबीह रसूल बने, अल्लाह ताला ने शबीह बनाया। तो आज इतनी ज्यादा बरकत है कि पूरी दुनिया में कई करोड़ ईसाई हैं कि एक थोड़ी देर के लिए शबाहत में इतना फायदा हुआ। अली अकबर तो 18 साल के शबीह रसूल है, एक मिनट कितना कीमती होगा। अंदाजा लगा लें कि अगर मैं फज़ाइल पढ़ना चाहूँ तो शुहदा के फज़ाइल भी कुरान में पढ़ा जाता है। शुहदा करबला के लिए क्या आयत और रिवायत है। अल्लाह अकबर, आप मुलाहिज़ा फरमाइए, यकीनन आंखों में आंसू आ चुका है। पुरसा देना है, जनाब उम्मे लैला को भी पुरसा देना है, जनाब ज़ैनब को भी पुरसा देना है और आपको 2-2 पुरसा देना है। आपके ज़हन में आ रहा होगा डबल पुरसा कैसा है। एक तो 7 मुहर्रम का पुरसा है। आज 7 मुहर्रम को ऐसा वक्त आ गया था करबला में कि हर खैमे में पानी खत्म हो गया था, लिहाजा आज ही से आवाज़ बुलंद थी, यकीनन अब तक रोएंगे तो कब रोएंगे। 7 मुहर्रम में भी तमाम है। शहज़ादी ज़ैनब आइए, पुरसा लेकर के जाइए। उम्मे लैला आइए, अपने लब्ज़े जिगर का पुरसा लेकर के जाइए।
لگائے ہوئے ہیں. اب یہاں پر دوسرا مقتل جو غیروں نے لکھا وہ کہتے ہیں کہ جب بھی علی اکبر ارادہ کرتے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, کبھی خیمے کا پردہ گر جاتا تھا, کبھی جناب سکینہ دامن سے نپٹ جاتی تھی. ارے بھیا آئے میرے اکبر, جو میں صبح سے گیا واپس نہیں آیا. کبھی جناب زینب سامنے آ جاتی تھی, کبھی ماں سامنے آ جاتی تھی. لہٰذا وہ کہتا ہے غیر کی مقتل یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکلتا ہوا. ابھی تک یہ محاورہ آپ سن رہے تھے, وہ محاورہ آج ادا کرنا ہے. حدیثوں بھی آپ نے سنا, روایتوں میں آپ سے کئی اماموں نے فرمایا ہے. امام رضا علیہ السلام کے گھر مجلس ہوتی تھی تو آپ بھی کھڑے ہو جاتے تھے مجلس میں اور بیان کرتے تھے. امام صادق بھی کھڑے ہو جاتے تھے. کیا جملہ کہتے تھے معلوم؟ اگر کوئی آہستہ سے روتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ایسے رویا کرو جیسے کڑین جوان کے جنازے پر اس کی موت کی حال وقت آ گیا ہے. وہ تشبیہ بار بار کی جا رہی تھی. کڑین جوان کا ماتم ہے, علی اکبر کا ماتم ہے, شبیہ پیغمبر کا ماتم ہے, دل بندے حسین کا ماتم ہے, ام زینب کے جان و جگر کا ماتم ہے, کربلا والوں کے ڈھارس کا ماتم ہے. کڑین جوان 18 سالہ علی اکبر کا یقیناً آپ بولے کہ یہ ہمارا ہے. علی اکبر نکل ہے. باہر نکلنے کے بعد کہا بابا اب تو روشن کر دیجیے, اب تو اجازت دے دی. حسین نے ایسے امامہ باندھا کہ باقاعدہ روایت میں ہے, جناب ام کلثوم نے اس روایت کو فرمایا ہے اس لیے کہ اور کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا. ام کلثوم نے دیکھا تھا کہ آپ نے پردہ ہٹا دیا تھا کہ جب حسین جانے لگے تھے تو باقاعدہ دیکھا گیا کہ خیمے سے ہٹ کر کے حسین کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی امامہ صحیح کر رہا ہے. ایک مرتبہ ام لیلہ نے فرمایا, ارے جناب ام کلثوم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں حسین کے نانا رسول ایسے ہی سوار کر رہے ہیں, ایسے ہی سوار جیسے علی اکبر کو مولا حسین. ہاں یقیناً میں سے پہنچ گیا. حسین تیار کر رہے ہیں اکبر کو, کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, کبھی حسین جو ہے زمین کی طرف. ہائے میرا اکبر, ہائے میرا کڑین جوان, ہائے میرا 18 سالہ علی اکبر. کیسے پڑھوں اللہ ایسی مصیبت یقین میں دوہرا نہیں پا رہا ہوں. ام لیلہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. ہاں ایران کے لیے ملتا ہے, ایران کے لیے ملتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو الوداع کہنے کے لیے ام میں تیاری ہو رہی تھی. یہ مولا حسین پیچھے پیچھے کیوں دوڑ رہے تھے دنیا سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ سجانے کے بعد علی اکبر کو سوار کرنے کے بعد پھر روایت کہتے ہیں کہ حسین پیچھے پیچھے دوڑنے لگے, اپنی کمر کو سنبھالے ہوئے ہیں. یہ تازہ واقعہ ہے کہ جب ایران عراق میں جنگ ہو رہی تھی, ایک 18 سال کا نوجوان بس میں بیٹھنے کے لیے آیا, باپ بھی ساتھ ساتھ آیا, امام دامنی بھی ہو گئی, اس نے صدقہ کی جو ہے مس کر دیا, اس کے بعد دوبارہ صدقہ نکال دیا. پھر جو سر پر بیٹھنے کے بعد باپ کبھی سر کے سامنے آتا تھا, باپ بیٹے سے کہتے بیٹا کھڑے ہو جاؤ, تمہاری جوانی میں دیکھ لو معلوم ہے کہ یقیناً شہید کر دیے جا رہے. بیٹا کھڑا ہوتا ہے, پھر بیٹھ جاتا ہے. ایک مرتبہ جب بس چلنے لگی تو نے شیشے میں جھانک کے دیکھا کہ بوا کام بس کے پیچھے پیچھے دوڑتا چلا جا رہا ہے. ارے جب عام نوجوان کی یہ محبت ہے, یہ تو علی اکبر کی محبت ہے, لہذا پیچھے مڑ کے کہتے بابا آپ نے تو سوال کرا دیا تھا, خدا آمینی کر دی تھی. ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا, کاش میرے لال تم شاید میرے لال میرا اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ایک باپ کے دل میں کڑین جوان کی کتنی محبت ہوتی ہے. یہ حسین کاش نہیں میرے دل میں حسرت تھی کہ میرے بیٹے کی شادی ہو, اس کے بیٹے کو دیکھا جائے. اور یہ جملہ بھی فرمایا تھا جب علی اکبر جانے لگے تو حسین نے جہاں بہت سے کلمات فرمائے, ہاتھ کو بلند کر کے کہتے ہیں پروردگارا اقتا نسل کما قتل
ہے۔ اللہ اکبر